इस वीडियो में हम VS कोड को NVIDIA के साथ कस्टमाइज करेंगे, NVIDIA की एक अलग प्रोफाइल बनाएंगे और उसमें कुछ सेटिंग करेंगे और इसके अलावा VS कोड की कुछ सेटिंग्स को देखेंगे और कुछ शॉर्टकट कमांड्स को देखेंगे जो बहुत यूजफुल है। तो मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूं। आप किसी भी फोल्डर के ऊपर एप्लीकेशन की प्रेस करके मेन्यू से ओपन विद कोड से उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं या किसी फाइल को आप VS कोड में ओपन कर सकते हैं अगर वो उसकी एक्सटेंशन सपोर्टेड है। तो यहाँ पे अब मैं VS कोड को डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। Visual Studio Code 35 of 30. Visual Studio Code. Document. मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। मैं आपको जो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाई हुई है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। आप NVIDIA का मेन्यू खोलेंगे। NVDA menu preferences submenu tool submenu T dual voice submenu help submenu configuration profiles ... C. Configuration profiles dialog list VS. कॉन्फ़िगर प्रोफाइल मैंने ओपन कर ली। VS code left parent editing comma triggered right parent. जो VS कोड मेरी प्रोफाइल है ये सिलेक्टेड है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Manual act new button alt rename button alt delete button alt plus D. Confirm deletion dialog list cancel button OK button. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ओके पे। Configuration profiles dialog list normal configuration et. अब मुझे यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है। New button alt plus N. यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। New profile dialog profile name edit blank. मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे देता हूँ, मतलब VS कोड VS C O D E. और आगे टैब प्रेस करूंगा। Use this profile for grouping manual activation radio button checked. Current application code radio button checked. मैंने एक दफा डाउन प्रेस किया है और यहाँ पे करंट फाइल कोड के ऊपर चेक कर देना है आपको। Space pressed. OK button. और ओके के ऊपर एंटर कर देना है। Visual Studio Code document blank. अब जो भी आप सेटिंग करेंगे NVIDIA की वो VS कोड के लिए ही होगी, बाकी आपकी जो नॉर्मल सेटिंग है वो वैसी ही रहेगी। अब VS कोड के लिए हम NVIDIA की एक अलग प्रोफाइल इसलिए कस्टमाइज कर रहे हैं क्योंकि हम VS कोड में चाहते हैं कि वो इंडेंटेशन बोले, लाइन नंबर बोले और इसके अलावा जो सारी सिंबल्स हैं वो उनको भी बोले और इसके अलावा कुछ और चेंजिंग मैं करूंगा। आप NVIDIA की सेटिंग ओपन कर लें। NVDA menu preferences submenu P. Settings S. मैंने NVIDIA की मेन्यू से सेटिंग्स को ओपन कर लिया है। NVDA settings general normal configuration dialog categories list. आपको यहाँ पे एक दफा डाउन प्रेस करना है और स्पीच पे जाना है। Editing profile VS code speech 2 of 16. अब यहाँ पे आपको टैब प्रेस करते जाना है। Speech property page synthesizer grouping edit red only change button alt plus voice combo variant comma rate slider rate boost check pitch sliders inflection select volume select head size slight roughness slider breathiness slight enable backquote enable abbreviation enable phrase prediction shorten pauses checkbox always send current speech settings automatic language switching automatic dialect switching with punctuation / symbol level combo box sum collapse alt plus L. यहाँ पे सम है, आपको यहाँ पे ऑल कर देना है अप डाउन से। None. Some. Most. All. Categories list. मैं दोबारा कैटेगरीज की लिस्ट पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको जाना है माउस पे। Braille 3 of 16. Vision 4 of 16. Keyboard 5 of 16. Mouse 6 of 16. यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूंगा। Mouse property page report mouse shape changes checkbox check alt plus S. ये मेरा ऑलरेडी चेक्ड है तो आपको इसको चेक कर देना है क्योंकि यहाँ पे आपको जब आप किसी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर्सर होगा तो वो अनाउंस कर देगा कि अभी आपका जो कर्सर है वो एडिटिंग फील्ड में है। Categories list mouse 6 of 16. Review cursor 7 of 16. Input composition 8 of 16. Object presentation 9 of 16. Browse mode 10 of 16. Document formatting 11 of 16. डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आपको अब आके टैब प्रेस करना है। Document formatting property page the following options control the types of font size checkbox not checked alt plus S. Font attributes checkbox not checked alt superscripts and subscripts check emphasis checkbox not checked alt marked highlighted text checkbox check style checkbox not checked alt plus colors checkbox not checked alt plus C. यहाँ पे आप कलर चेक करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर, क्योंकि यहाँ पे एक कलरफुल टेक्स्ट दिखाया जाता है जिससे पता लग जाता है कि ये एरर है, ये एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू है, ये टैग है। अगर हम CSS की बात करें तो प्रॉपर्टीज और इस तरह जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस और जो मेथड्स होते हैं टारगेटिंग मेथड्स, तो वो सारी चीजें इस तरह उसने अलग अलग कलर में दिखाई हुई होती हैं VS कोड में, वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर रहा। Document information grouping notes and comments checkbox check alt plus editor revisions checkbox check alt spelling errors checkbox check alt plus off pages and spacing grouping pages checkbox check alt line numbers checkbox not check alt plus N. इसको आप चेक कर दो। Line indentation reporting combo box off collapse alt plus I. इसको आपने ऑन कर देना है स्पीच पे Speech. और उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। Paragraph line spacing table information grouping list checkbox block groupings articles check clickable report for OK but cancel button apply button alt plus A categories colon list document formatting 11 apply cancel OK button. अब मैं ओके के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ और ये हमारी प्रोफाइल बन जाएगी। Visual Studio Code document. अब यहाँ पे मैं VS कोड की जो प्रोफाइल बनी है उसको टेस्ट करने के लिए एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
Untitled -1 editor as autocomplete multi-line blank. मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ पहले तो। Save as dialog. File name : combo box collapsed. Edit Alt + N selected untitled -1.txt. Blank. मैं यहाँ पे लिख T select EST. Test dot. HTML. Save as type toolbar. Hide folders button. Save button Alt + S. मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोड को लिखना शुरू करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इंडेंटेशन किस तरह बोलेगा। Less. Suggest list. Bang doc type 1 of 10. Test.html editor as autocomplete multi-line less bang doc type HTML greater. Blank. Less. Set H1 T HTML. HT. Greater. Space. 4 space. अब मैंने एंटर किया तो वो 4 स्पेस बोल रहा है। अब मैं हेड Less. Set H E A D. Head. Greater. Test. 8 space. 8 स्पेस Less. Set E I L E. Title. Greater. Space. T H S. This. S. Is. Space. T. I T E. Suggest list. Title 1 of 1. Test.html editor as autocomplete multi-line 4 space less slash head greater. No indent less slash HTML greater. नो इंडेंट। यहाँ पे ये बता रहा है कि HTML जो है वो नो इंडेंट है। 4 space less slash head greater. जो हेड है वो 4 स्पेसेस है। 8 space less title greater is title less slash title greater. लेस टाइटल जो है ये 8 स्पेसेस है। तो यहाँ पे ये 4 स्पेसेस के साथ इंडेंट करता है जब हम कोई नया टैग शुरू करते हैं। इस तरह ये कोड जो है दिखने में खूबसूरत लगता है और आपको अच्छे से समझ आता है। अब यहाँ पे ये देखें सारे सिंबल्स को भी अनाउंस कर रहा 4 space less head greater. 8 space less title greater is title less slash title greater. है लेस स्लैश टाइटल। और जो भी आप मैं सिंबल लिखूंगा तो वो यहाँ पे ये अनाउंस करेगा ताकि सुनने में कोड को आसानी रहे। तो यहाँ पे चाहे तो आप स्पीड भी स्लो कर सकते हैं ताकि आपको कोड को सुनने में आसानी हो। अब यहाँ पे जो लाइन नंबर वो नहीं अनाउंस करता, उसका एक शॉर्टकट तरीका है। आप कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ये आपका जिस लाइन में कर्सर होगा और जिस कैरेक्टर पे होगा वो अनाउंस कर देगा। Current line : 4 comma character : 30 dot. Type a line number between 1 and 6. Test.html. तो ये गो टू लाइन पे जाने का एक तरीका है कंट्रोल G से। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे अनाउंस कर देगा कि आप किस रो में हैं। मैं दोबारा एक दफा आपको करके दिखा देता हूँ। एक दफा लाइन के पेज के शुरू में मैं आ जाता हूँ। No indent less bang doc type HTML greater. तो अब मैं कंट्रोल G प्रेस करता हूँ। 1 results. Current line : 1 comma character : 1 dot. Type a line number between 1 and 6 to next. तो ये उसने बता दिया है लाइन 1 कैरेक्टर 1। अब सपोज मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे टैब प्रेस करने से इंडेंट नहीं होना चाहिए बल्कि ये डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाए, तो आप कंट्रोल M से इसको इनेबल कर सकते हैं। Pressing tab will now move focus to the next focusable element. तो अब जो है ये किसी भी फोकसेबल एलिमेंट पे मूव करेगा। मैं टैब प्रेस करके आपको बताता हूँ। Status bar. स्टेटस बार पे अब ये चला गया। Test.html - Visual Studio Code document blank. Application toolbar. Toggle primary sidebar left parent. CTRL + D right parent button. ये टॉगल है साइड बार को, मतलब आप इसको हिडन कर सकते हैं कंट्रोल B से। Active view switcher tab control. Explorer left parent. CTRL + Shift + E right parent tab. तो ये एक्सप्लोरर है। Search left parent. Source control left. Run and debug left parent. अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसको इनेबल कर दूं तो कंट्रोल M से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल M प्रेस कर रहा हूँ। Pressing tab will now insert the tab character. अब टैब प्रेस करने से ये इंडेंट करेगा डॉक्यूमेंट में। इस तरह आप कंट्रोल 1 से लेकर कंट्रोल 8 तक न्यू फाइल्स ओपन कर सकते हो। एक साथ मुख्तलिफ फाइल्स पे काम कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो एक और फाइल ओपन हो जाएगी। मैं आपको प्रेस करके बताता हूँ। Group 2 left parent. Empty right parent section. अब यहाँ पे ग्रुप 2 आ गया जो एम्प्टी। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो किसी एक फाइल को क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल N प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस सेक्शन में अलग एक फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप दो एक साथ फाइल पे काम कर सकते हो। अगर आप इसी तरह एक और फाइल क्रिएट करना चाहते हो कंट्रोल 3 प्रेस करोगे। Group 3 left parent. Empty right parent section. तो इस तरह आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स पे एक साथ काम कर सकते हो। और अगर आपको फर्स्ट फाइल पे मूव करना है तो आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे। Test.html, editor group 1 editor as autocomplete multi-line left. तो ये हमारी test.html वाली फाइल है जिसके ऊपर हमने छोटा सा एक इंडेंट के बारे में आपको बताया था। और कंट्रोल 2 Group 2 left parent. Empty. और इसी तरह कंट्रोल Group 3। 3 left parent. तो आप इस तरह मुख्तलिफ मल्टीपल फाइल्स के ऊपर मूव कर सकते हो कंट्रोल 1 से कंट्रोल 3 या 8 तक। अब इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो सर्च करके कुछ भी, मतलब आप सपोज नोटिफिकेशन को एक्सेस करना चाहते हो डायरेक्टली, आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करोगे और नोटिफिकेशन सर्च करोगे तो आप नोटिफिकेशन पे जा सकते हो। या इसके अलावा और कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो जिसकी आपको शॉर्टकट कमांड चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरह भी सर्च कर सकते हो। तो जो की बाइंडिंग्स हैं उनको देखने के लिए वो अलग कमांड है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। सपोज यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस कर रहा हूँ। 700 results. Type the name. 700 है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रीन। S 5C 43 result R 13 results. Developer : toggle screencast mode, recently used. Debug : developer : toggle screencast mode, recent. स्क्रीन कास्ट मोड।
अब यहाँ पे मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो स्क्रीन कास्ट मोड है वो ऑन हो जाएगा। इसका फंक्शन जो है ये है कि ये अक्सर यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। जब आप कोई कोड लिख रहे होते हैं तो वो आपके कैप्शन में दिखाता है, या आप जो शॉर्टकट कीज इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कैप्शन में दिखाता है। तो ये आप इसकी सेटिंग में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसकी किस तरह करते हैं सेटिंग्स। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो नीचे स्क्रीन पे कैप्शन के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं दोबारा इसको ऑफ कर देता हूँ। 700 results. Type the name of a command. S C R 43 results. 13 results. Developer colon toggle screencast mode. Debug colon developer colon toggle screencast mode comma recently used 1 of 13. इसके ऊपर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में VS कोड की सेटिंग्स के बारे में, शॉर्टकट कीज जो की बाइंडिंग होती हैं उनको किस तरह क्रिएट करते हैं, या ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट में आती हैं उनको उन तक किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।